Assalamu alaikum. This lecture is for the class 3rd year and the course is 510. Today we will discuss the demonstration of the effects of the sympathomimetics and parasympathomimetic drugs on the frog's heart. इसमें हम फ्रॉग के हार्ट पे इसके इफेक्ट्स देखेंगे इन दो ड्रग्स के. जैसे कि हमने आइस पे इफेक्ट्स देखे थे, बिल्कुल उसी तरह हमें फ्रॉग्स के हार्ट पे भी उसके इफेक्ट्स देखते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. सो इफ वी टॉक अबाउट द हार्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. And basically heart is a pumping organ and it is responsible for the circulation of the blood and it works through the cardiac cycle. And if we talk about the contraction process, we know that there is an SA node through which an automatic electrical impulses are generated, which moves along the bundle of his and the ventricle, due to which the heart is undergoing the contraction process. The action is basically done in two steps, that is the contraction, or which is also called as systole, and this systole is followed by the relaxation phase, also called as diastole. The heart showing its effect by the heart sounds, and the pumping action is basically depend upon the rhythmicity of the heartbeat. यानी जो heartbeat है basically लब डब. This sound is basically the sound of the heartbeats, and it shows the one cardiac cycle. The activity of the heart is basically due to the electrical activity which produces the heart in the contraction and which lead to the blood flow throughout the body. This electrical activity is basically under the control of the autonomic nervous system, and the two major autonomic nervous systems are involved. One is we can say sympathomimetic system, which is in which we have the agonist of the epinephrine or norepinephrine, while another system which controlling the heart activity by balancing the sympathetic nervous system is parasympathetic nervous system, and the agonist is the acetylcholine, act on the muscarinic receptors. Beside these two agonists or two autonomic nervous system, some electrolytes are also responsible for the cardiac muscles contractility. These are potassium and calcium, and they have effect on the cardiac muscles through the non-receptor mechanism of action. So we can say majorly we have 4 types of substances which can affect the frog hearts. 2 are those which are basically performing their action through the receptors, that is adrenaline and the acetylcholine, while 2 are those which are basically electrolytes which basically changes the electrical activity by changing the concentration of the ions, and these are potassium and calcium. The producing their effect by non-receptor mechanism. If we see the heart of the frog, there is several similarity and differences from the human heart. Basically, the heart of the frog has the 3 chambers, 1 ventricle and 2 atria. And in human, we are all familiar with that we have 2 ventricles and 2 atrium. In case of frog hearts,
both atria are basically empty into the single ventricle, and blood from the ventricle enters either into the pulmonary system or body circulation. So there is only one ventricle, so there is a chances of a mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Usually the chamber that includes the right atrium, that is right atrium receives the deoxygenated blood from the veins, and then blood is pumped into the frog's body. This is the general picture of the receptors which are present in the heart. Basically we have the beta receptors, beta 1 receptors and M2 receptors. If we talk about the beta 1 receptors, the major agonist is the adrenaline, and their effect on the heart is basically responsible for the activation of sympathetic effects, that is on SA node they increases the rate of the contractility, they producing the effect through the atrial muscles, and they increases the force of the contractility, and if it is acting on the AV node then it increases the automaticity, and if it acts on the, if activated through the ventricle muscles, they will increase the automaticity and as well as the force of the contractility. So overall the effect on beta receptor is that they basically increases the chronotropic and inotropic effect through the activation by the adrenaline. On the other side, acetylcholine, basically it is an organic molecule and it is a neurotransmitter as well. It is an ester of the acetic acid and the choline. And if we talk about the autonomic nervous system, and if we talk about the heart, then basically they have the receptors which are basically nicotinic in nature as well as the muscarinic in nature. In heart basically we have the muscarinic receptors which are G coupled protein receptors, as you can see in the picture. In CNS majorly the receptors between the neurons is the nicotinic receptors. So in heart they mainly activated the muscarinic receptors, and these receptors are also present in lungs, in upper GI tract and sweat glands, and they are basically responsible for the activation of the parasympathetic nervous system, responsible for the decrease of the rate of contraction and force of conduction and the conduction velocity, while they have no effect on the ventricular muscles. These both systems are basically balancing the heart contraction, and they basically responsible for the required blood pressure and the required pressure through which the body can receive the blood by the heart. So अगर एक सिस्टम ही एक्टिवेट रहेगा तो फिर वो बॉडी कंटिन्यूस उसमें रहेगी. तो one system is followed by the activation of the another system. Now how we can perform this experiment? For this we require several things, and we required animal which is frog, we required physiological salt solution, we required ringer solution, we required several drugs like adrenaline or acetylcholine, and its antagonist like atropine, pilocarp, or agonist like pilocarpine. We have several other requirements which are mandatory for the performance of the experiment. These are the tray, transducer, chymograph, pins and syringes, gloves, etc., fitting needles, some electrolyte solutions, etc.
How we can perform this experiment? We need a medium-sized frog, which is clamped on the frog board, and it will be cutted in a middle incision, and the thoracic cavity is then opened, and the frog is placed on the tray by stretching all 4 limbs on the side. So हम इस तरह उसको फ्रॉग को सेट करेंगे कि we can easily open the chest cavity and we can easily visualize the frog heart, and the frog heart is then कंडीशन उसकी ऐसी होगी कि फ्रॉग जो है वो लाइव हो और जो हार्ट हो उसका जो है वो हम इस तरह उसको कट करके ओपन करेंगे, इसका चेस्ट एब्डोमेन, कि वो फ्रॉग जो है वो डेथ ना हो, वो जिंदा हो. ठीक है. तो thoracic cavity is opened and the heart is now gently freed from the pericardium and it is dipped in the frog ringer solution. एंड द काइमोग्राफ का जो नीडल है बेसिकली वो जो अटैच किया जाएगा वो ट्रंकस आर्टियोसिस से इसको अटैच किया जाएगा, और इस तरह की कुछ अरेंजमेंट होगी जो कि हमें नज़र आएगी कि हमारे पास फ्रॉग है और वो एक ट्रे पे है और वो अटैच है काइमोग्राफ से. तो जो फ्रॉग की रिदम है वो काइमोग्राफ पे इस तरह रिकॉर्ड होती हुई हमें नज़र आएगी. सबसे मुश्किल इसकी सेटिंग होती है, और इसकी में इंक की सेटिंग होती है और इसकी रेट की सेटिंग होती है. तो हमें हर दफ़ा एक कंट्रोल भी लेना पड़ेगा. मेथड क्या है कि हमें थोड़ा सा टेम्परेचर का सेट करना पड़ता है फ्रॉग का, एंड देन वी रिक्वायर्ड दी रिंगर सोल्यूशन. यूजली आपको लैब में प्रिपेयर्ड मिलेगा, बट यू शुड नो द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिंगर सोल्यूशन एज वेल. हाफ मिनट के लिए वी विल ऑब्जर्व द हार्ट रेट एज अ कंट्रोल. जो भी उसकी नॉर्मल हार्ट रेट होगी वो हम कंट्रोल करेंगे, एंड देन आफ्टर नोटिंग डाउन द कंट्रोल हार्ट बीट और कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हम उसमें देखेंगे कि हम देखेंगे नंबर ऑफ बीट्स आ रही हैं कि एक 30 सेकेंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ बीट्स कितनी हैं वो हम नोट करेंगे. यूजली 30 होंगी, but it can vary depending upon the condition of the frog, कि उसकी अंदर भी कितनी ज़िंदगी बाकी है. देन फिर उसके बाद हम उसमें मल्टीपल इफेक्ट्स 1 by 1 करके देखेंगे ड्रग्स के, और एक ड्रग का जब हम इफेक्ट देखेंगे तो फिर हम हार्ट को वॉश आउट करेंगे नॉर्मल सलाइन से या वाटरफॉल इंजेक्शन से, एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय दी अनदर ड्रग. So if we talk about the control, the initial heart rate, the variation will be there, and the variation is about 60 to 100 per minute. हम 30 सेकेंड के लिए नोट करेंगे, तो हम जो भी रीडिंग है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम 30 सेकेंड पर 30 सेकेंड लिखेंगे. लोअर डोजेस पे नॉर एड्रेनालिन का इतना इफेक्ट नहीं आता जितना कि एड्रेनालिन का आता है, इसलिए वी विल यूज दी एड्रेनालिन. एड्रेनालिन की ड्रॉप्स हम बेसिकली यूज करेंगे डायरेक्टली हार्ट पे. उससे पहले हम एक कंट्रोल रीडिंग ले चुके होंगे. जैसे ही हम हार्ट पे इसकी डालेंगे तो कुछ सेकंड्स के बाद हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, एंड यू विल नोटिस दैट कि जो भी पीक्स की हाइट थी वो इंक्रीज हो जाएगी. नॉट ओनली द हाइट ऑफ पीक इज इंक्रीजिंग, जो हार्ट की एम्पलीट्यूड है वो बेसिकली वो शो कर रही है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एंड रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नंबर ऑफ पीक्स से पता चलेगा. अगर नंबर ऑफ पीक्स बढ़ रही है इट मीन्स हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, तो फिर रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रही है, कार्डियक साइकिल इंक्रीज हो रही है पर मिनट. व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? एड्रेनालिन बेसिकली इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड एम्पलीट्यूड, दोनों चीजें इंक्रीज होंगी बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द बीटा रिसेप्टर्स मोर एज कंपेयर टू दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. यानी अब जब आप बाहर से एगोनिस्ट दे रहे हैं एड्रेनालिन, तो उसके इफेक्ट जो है वो इन्हांस हो रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स जो है वो इन्हांस हो जाएंगे.
and amplitude and the rate of heart will be increased based upon the कंट्रोल रीडिंग. कंट्रोल के मुकाबले में हम देखेंगे कुछ ना कुछ इसमें इंक्रीमेंट आएगा विच रिजल्ट इन दी टैकीकार्डिया एंड दी हाइपरटेंशन. उसके बाद हम उसको वॉश आउट कर देंगे. वॉश आउट करने के बाद वी विल यूज इधर दी एसिटाइलकोलिन एंड वी कैन यूज ऑल्सो दी पायलोकार्पिन. Acetylcholine, what it will do, it will basically decreases the heart rate and amplitude. It has an opposite effect. And हम उसके लिए हम एट्रोपिन भी यूज कर सकते हैं. एट्रोपिन जो कि बेसिकली एंटागोनिस्ट है, तो इट मे प्रोड्यूस द सिमिलर इफेक्ट विथ सेम एज दैट ऑफ द एड्रेनालिन. And if we talk about the potassium, the increase in potassium concentration basically decreases the heart rate and amplitude, और वो collapse कर सकता है. अगर कैल्शियम हम यूज करेंगे तो कैल्शियम कंसंट्रेशन इन एक्सेस स्टॉप द हार्ट बीट ड्यूरिंग दिस सिस्टोलिक फेज. And basically this effect is similar to the digoxin poisoning because of the vigorous contraction. तो इसलिए बेसिकली हम कैल्शियम को यूज नहीं करेंगे अपनी करंट एक्सपेरिमेंट में, अदरवाइज कि हमारा जो हार्ट है वो एकदम स्टॉप हो जाएगा. तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हम यूज कर सकते हैं ड्रग एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स. दिस इज द समरी ऑफ द इफेक्ट. तो कंट्रोल में हमें बेसिकली हार्ट रेट, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्ट रेट 87 आई है तो एम्पलीट्यूड नॉर्मल है, टोन भी नॉर्मल है. इफ यू टॉक अबाउट द एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन से एंड नॉन एपिनेफ्रिन से बोथ से हमारे पास हार्ट रेट एंड एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, लेकिन नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज नहीं करेगी बिकॉज इट इज़ मोर प्रेजेंट इन दी CNS रादर देन इन हार्ट. तो हार्ट पे अल्फा रिसेप्टर्स भी नहीं है, तो बेसिकली हार्ट पे नॉन एपिनेफ्रिन का इतना ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं आएगा जितना कि एपिनेफ्रिन का आएगा. देन अगर हम बात करें एसिटाइलकोलिन की, तो हार्ट रेट विल डिक्रीज एंड एम्पलीट्यूड विल ऑल्सो डिक्रीज. हाउएवर टोन इज नॉट डिक्रीजिंग. टोन जो नॉर्मल हार्ट की है वो वही रहेगी. और दीज आर द डोजेस जिस डोजेस पे बेसिकली इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे. हम जो है वो बेसिकली यूज करेंगे सॉल्यूशन फॉर्म में, ड्रॉपर्स यूज करेंगे. एंड बेसिकली हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे? वी विल यूज एट्रोपिन, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, पायलोकार्पिन एंड एसिटाइलकोलिन. How we can record this experiment? First, the drum is started at the minimum speed and it is attached to the tracing device. And one by one we are using the drug, जैसे कि अभी हमने बताया है. And हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और जो फ्रॉग की ज़िंदगी के मुताबिक हम देखेंगे कि अगर हार्ट फ्लैसिड हो रहा है तो फिर हम रीडिंग्स के दरमियान गैप्स कम रखेंगे. बट आइडियल कंडीशन ये है कि 5 मिनट का गैप हम दें दो ड्रग्स के दरमियान. दो डिफरेंट ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं और उसके इफेक्ट को ख़त्म होने के लिए हमें एटलीस्ट 5 मिनट का इफेक्ट देना होगा, वरना अदरवाइज क्या होगा कि हम हार्ट को जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं. इसलिए अगर, और इसके साथ एक चीज़ और भी है कि अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी कटेड है, ओपन है, हार्ट फ्लैसिड होने लगेगा, थकने लगेगा और उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होने लगेगी. तो आखिर में अगर हम यूज़ करेंगे, हम आखिर में यूज़ करेंगे पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स, पहले हम सिंपैथेटिक ड्रग्स ही यूज़ करेंगे. ठीक है. हाउ वी कैन राइट द डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे आइनोट्रोपिक एंड कोनोट्रोपिक इफेक्ट्स वन बाय वन. दो आपके बीच में बल्कि 3 मेजर एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि इस फ्रॉग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हैं. एक में आपने सिर्फ ऑब्जर्व करनी है कंट्रोल रीडिंग, दूसरे में आपने एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और तीसरे में आपको एक्टिवेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है.
उसमें आपने फिर इसका डिस्कशन लिखना है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स मैकेनिज्म और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व है। जैसे कि हम अगर बात करें एपिनेफ्रिन की, तो इसमें बेसिकली ये कैल्शियम के साथ एसोसिएट होकर इन्हांस करता है स्पीड एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इट शॉर्टर द सिस्टोल एंड मीन्स it causes the diastole increasing, ventricular filling increasing the cardiac output, excited the heart through the SA node, AV node and Purkinje fiber. पूरी ऐसे एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। इस तरह आपने डिस्कशन लिखना है पूरा मैकेनिज्म के थ्रू। सिमिलर विद दैट केस ऑफ द एसिटाइलकोलिन, अगर हम कोई एंटागोनिस्ट यूज कर रहे हैं तो फिर हमें उसका पूरा मैकेनिज्म डिस्कशन में लिखना होगा कि कैसे इट हैज अ नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। एंड जैसे फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट जो है वो बेसिकली जो है वेंट्रिकल्स पे है एंड इट बेसिकली इंक्रीजेस द हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द SA node and it reduces the depolarization. So overall effect is the reduction of the heart rate. Same mechanism is present in the AV node. आपने पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करना है। इसी तरह एट्रोपिन का मैकेनिज्म डिस्कस करना है कि बेसिकली इट बाइंड्स विद द पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स ऑन द हार्ट, मस्कुलिनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा एंड इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल इट विल एक्ट टू इंक्रीज द हार्ट रेट बढ़ा देगा एट्रोपिन। हाउएवर जो है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखें डिफरेंस है एट्रोपिन एंड एड्रेनलिन का। दोनों जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे। हाउएवर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एट्रोपिन के केस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी। आपको एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत बड़ा नज़र नहीं आएगा। एड्रेनलिन के केस में कंट्रोल के मुकाबले में एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, जो कि हाईलाइट करता है कि इट इज़ एड्रेनलिन नॉट एट्रोपिन। Then we have the potassium chloride. Potassium basically एक electrolyte है and it causes the permanent depolarization by a higher intracellular potassium concentration and it causes the loss of the excitability. तो cardiac arrest basically हो सकता है during the diastole. It is very dangerous. खासतौर पर वो पेशेंट्स जिसमें पोटेशियम का मसला हो जाता है, रीनल फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, उसमें पोटेशियम जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी के अंदर, पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होता, ब्लड पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब पोटेशियम लेवल इंक्रीज होगा आई थिंक 5.5 मिलीमोल से ज़्यादा होगा, इट विल बी वेरी डेंजरस एंड इट इवेंचुअली कॉजिंग द कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग द डायस्टोल। बहुत ही साइलेंट कार्डियक अरेस्ट होता है पोटेशियम के हाई होने से, इसलिए पोटेशियम फॉर द स्पेशली रीनल पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, some precaution should be there. What are these? And the syringe should be washed before injection. Each drug, हर ड्रग के लिए आपको सेपरेट सिरिंज यूज करनी चाहिए, सेपरेट ड्रॉपर यूज करना चाहिए। अगर एक ही यूज करें तो फिर प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। ओवर परफ्यूजन शुड बी अवॉइडेड। रिंगर सोल्यूशन इतना हो कि बस वो हार्ट जो है वो अलाइव रह सके एंड एयर बबल्स वगैरह ना हो उसकी ट्यूबिंग में जो रिंगर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और हार्ट में हम ड्रग इंजेक्ट नहीं करेंगे, ऊपर से ड्रॉप वाइज डालेंगे। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल कि इस तरह आपके पास आएगा। एवरी टाइम यू हैव टू नोट डाउन द कंट्रोल। जब भी आपका एक इफेक्ट ड्रग का खत्म होगा तो आपने कंट्रोल लेना होगा, क्योंकि कंट्रोल आपके पास जो इनिशियल वैल्यू होगी उसी से आप कंपेयर करेंगे। आइडियली ऐसा होना चाहिए कि हर एक फ्रॉक पे सिर्फ एक ही ड्रग को देखा जाए, मल्टीपल ड्रग्स को ना देखा जाए। तो इस तरह की आपके पास रिजल्ट्स आएंगे और आपने ये जो है वो अपनी मैनुअल में लिखने भी हैं। थैंक यू बेटा, इट्स ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर।